So, good morning and welcome. We have started with the topic third, human reproduction. In human reproduction chapter, we already said that if you listen this very carefully and you read NCERT book word to word, that NCERT book reading clip also have been sent to you. So it's a guarantee of getting some 3 or 4 question. Till now in human reproduction, we have said what are the events in sexual reproduction of human. Sir, you said that there is gametogenesis, that is formation of a male gamete sperm, formation of a female gamete ovum, then there is fertilization, embryogenesis, प्रेग्नन्सी, पार्च्युरेशन, लॅक्टेशन. तो सर आधी जेव्हा तुम्ही सुरू केला टॉपिक तेव्हा सांगितलं कि ह्यूमन्स आर सेक्शुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म एंड दे आर विविपैरस. तो इंसान जो है वो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन करते और बच्चे को जन्म देते. ये जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है उसकी इवेंट्स आपने लिस्ट आउट की कि गमीटोजेनेसिस होना चाहिए, फर्टिलाइजेशन होना चाहिए, एम्ब्रियोजेनेसिस होना चाहिए, जस्टेशन माने कंप्लीशन ऑफ अ पीरियड ऑफ एम्ब्रियोनिक ग्रोथ होना चाहिए, और फिर पार्च्युरेशन, लैक्टेशन. एंड देन आई हैव लिस्टेड that we will break the topic into the convenient titles. Initially, I have listed 4 titles: male reproductive system, histology of testes, spermatogenesis, structure of sperm, to which I call as a male department. In a similar fashion, female reproductive system, histology of ovary, oogenesis and structure of female gamete or ovum, to which we call as a female department. So these 8 titles initially we have started with. In very first lecture, we started the male reproductive system and completed scrotum and testes. In second lecture, we talked about duct system, penis. In third lecture, we talked about the accessory sex gland, that is a pair of seminal vesicle, single prostate gland and pair of Cowper's gland. And we also talked about histology of testes. आता हिस्टॉलॉजी झाल्यावरती आपल्याला 2 टायटल घ्यायचे. एक घ्यायचा आहे स्पर्मैटोजेनेसिस, कि उस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में जो स्पर्मैटोजेनेसिस हुआ उसको विस्तार से हमें देखना है. इस पे क्वेश्चंस रहते और हमें देखना है स्ट्रक्चर ऑफ अ मेल गमीट, दैट इज स्पर्मैटोजुआ और स्पर्म. ये 2 टाइटल हम लोग अभी देखेंगे. लेट अस स्टार्ट. What is spermatogenesis? So sir, we could say spermatogenesis is a process of formation of male gamete or sperm or spermatozoa. The process of formation of spermatozoa, that is male gamete, it's called spermatogenesis. Where the spermatogenesis take place? Sir, spermatogenesis occur in a testis in every seminiferous tubule. Which hormones are required for spermatogenesis? Spermatogenesis require anterior pituitary hormone FSH, follicle stimulating hormone, and also the testicular hormone androgen, that is testosterone. Next, when a human male can do spermatogenesis, तो spermatogenesis start, the process of formation of sperm start only after puberty.
and it continues till old age. Not like human females. In human females, the process of formation of ovum cease around the 45-50 year, called menopause. But here the thing is different. The spermatogenesis continues from puberty onwards till the old age, say around 60 years. So this is the preliminary idea of spermatogenesis. तो पहिला पॉइंट होता स्पर्मॅटोजेनेसिस म्हणजे प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल गमीट और स्पर्मॅटोजुआ. दूसरा पॉइंट होता स्पर्मॅटोजेनेसिस कुठे होते. सो इट अकर्स इन टेस्टिस इन एव्हरी सेमाइनिफेरस टिब्यूल. तिसरा पॉइंट होता की स्पर्मॅटोजेनेसिसला कोणते हार्मोन लागतात. FSH जे अँटिरियर पिच्युटरीचं हार्मोन आहे आणि एंड्रोजेन म्हणजे टेस्टोस्टेरॉन जे स्वतः टेस्टिस देते. तो आप जानते कि टेस्टिस कैसे दे सकता एंड्रोजेन. तो सर बिटवीन द सेमाइनिफेरस टिब्यूल देर इज अ कनेक्टिव टिश्यू विच कंटेन इंटरस्टिशियल सेल और लेडिक सेल and when they are stimulated by LH they produce testosterone. म्हणजे सर आम्ही प्रिव्हियस लेक्चरमध्ये ऐकलं की सेमाइनिफेरस टिब्यूलच्या मध्ये कनेक्टिव्ह टिश्यू असतो, त्याच्यात इंटरस्टिशियल सेल किंवा लेडिक सेल्स असतात आणि त्यांना जर LH स्टिम्युलेट करत असेल तर मग भेटतं टेस्टोस्टेरॉन सम 7 मिलीग्राम पर डे. चौथा पॉईंट होता की स्पर्मॅटोजेनेसिस ही प्रोसेस सुरू कधी होते पुरुषांमध्ये 14 वर्षाच्या नंतर म्हणजे आफ्टर प्युबर्टी. प्युबर्टी म्हणजे सेक्शुअल मॅच्युरिटी. आणि हे कधीपर्यंत चालतं तर ओल्ड एजपर्यंत, साधारण 60 वर्षापर्यंत. त्याच्यानंतरही असतं बट द स्पर्मॅटोजेनेसिस डिक्लाइन्स. ये जो स्पर्मैटोजेनेसिस है इसकी इंट्रोडक्शन में मैंने कहा स्पर्मैटोजेनेसिस मतलब कि स्पर्म बनाने की क्रिया. स्पर्मैटोजेनेसिस हर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ऑफ टेस्टिस में होता है. इसके लिए FSH एंड एंड्रोजन हार्मोन की ज़रूरत है और स्पर्मैटोजेनेसिस 14वें साल आफ्टर प्यूबर्टी ओनली स्टार्ट होता है एंड इट कंटिन्यूज टिल द ओल्ड एज. और अब हम देखेंगे कैसे होता है spermatogenesis. See, the process of spermatogenesis is completed in 3 phases. Multiplication phase, then growth phase, then maturation phase. तो मल्टीप्लिकेशन फेज, तो मल्टीप्लिकेशन फेज इन्वॉल्व माइटोसिस, सेल मल्टीप्लिकेशन by rapid cell division, nothing else, and the resultant spermatogonia now grow in size, that is called growth phase. So all the spermatogonia formed as a result of multiplication, they increase the size and they became primary spermatocyte. Now in maturation phase, the primary spermatocyte undergo meiosis first to form 2 secondary spermatocyte, and then second meiosis occur in each secondary spermatocyte to form spermatids, and then every spermatid undergoes spermiogenesis and it forms the spermatozoa or sperm. So 3 phases: multiplication phase that involve mitosis, growth phase and maturation phase. Remember, maturation phase involve meiosis, reduction division. So the conclusion is spermatogenesis involve mitosis as well as meiosis. अब ये ध्यान रखो कि ज़्यादातर हम लोग बोलते हैं कि गमीटोजेनेसिस के लिए मियोसिस की ज़रूरत होती है, पर पहले तो मल्टीप्लाई होने चाहिए सेल्स, तो उसके लिए माइटोसिस भी लगता.
तो स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis, that is gametogenesis, require mitosis as well as meiosis. तो कौन सी 3 फेजेस मैंने बताई स्पर्मेटोजेनेसिस की? मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज, मैचुरेशन फेज. अब हम कल का एक बार देख लेते कि जब मैं आपको बता रहा था टीयर्स ऑफ टेस्टिस या टीयर्स ऑफ लोब्यूल, तो you have seen their seminiferous tubule, a connective tissue containing Leydig cells, and every seminiferous tubule contain 2 type of cell. तो फर्ज करो कि ये है सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल आणि काल आपण म्हटलं होतं की each seminiferous tubule consists of 2 type of cell. Very few tower shape Sertoli cell or nurse cell, very few pyramidal tower shape Sertoli cell or nurse cell, and large number of germinal epithelial cell, that is cuboidal germinal epithelial cell. Cuboidal जर्माइनल एपिथेलियल सेल. म्हणजे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूलमध्ये किती प्रकारच्या सेल आहे? 2 प्रकारच्या. ह्या कोण आहे? क्युबॉइडल जर्माइनल एपिथेलियल सेल. आणि ह्या कोण आहे? सो दे आर सर्टोली सेल. अब सुनो, पहले क्या होगा? तो दीज क्युबॉइडल जर्माइनल एपिथेलियल सेल्स दे proliferate, multiply, रैपिड सेल डिवीजन अकर. क्यों? क्योंकि ये जर्माइनल एपिथेलियम तो खुद यूज नहीं होगा, वो इंटैक्ट रहेगा और वो बना के देगा नई सेल्स. म्हणजे हा तर वापरला नाही जाणार, पण याच्यापासून सेल मल्टिप्लाय होऊन येतील, नवीन सेल बनतील मायटॉटिकली, म्हणजे 100% तशाच. सो मग त्याच्यामुळे हे तयार झाले स्पर्मैटोगोनिया. अब इसी को मैंने वहां पर निकाला. देखो, फर्ज करो कि ये है एक जर्माइनल एपिथेलियल सेल. आप चाहे तो उसको प्राइमोर्डियल जर्म सेल कहो या फिर आप स्पर्मैटोगोनिया कहो, जो अब मल्टीप्लाई होने वाला है. तो ही आहे जर्माइनल एपिथेलियल सेल. तीच मी इथे काढली, जर्माइनल एपिथेलियल सेल विच इज डिप्लॉइड. डिप्लॉइड माने 46 क्रोमोसोम. अब एक माइटोसिस हुआ तो सर एक माइटोसिस हुआ तो एक सेल से 2 सेल, क्रोमोसोम नंबर सेम, ये हो गई 2 सेल्स. वापस माइटोसिस हुआ तो सर 2 सेल से 4 सेल, क्रोमोसोम नंबर सेम. फिर तीसरा माइटोसिस हुआ 8 सेल, चौथा हुआ 16 सेल, पांचवा हुआ 32 सेल. लाइक दिस अकर मल्टीप्लिकेशन and hence the name multiplication phase, and it involve mitotic division. The purpose is simply to increase the cell number. म्हणजे ही एकच होती जर्माइनल एपिथेलियल सेल आणि याच्यापासून मग 2, मग 4, मग 8, मग 16, मग 32 अशा नवीन सेल भेटतात और उन्हें कहा है स्पर्मैटोगोनिया. सिंग्युलर स्पर्मैटोगोनियम. It is also diploid. Twice n is 46. अब खत्म हो गई मल्टीप्लिकेशन फेज और ढेर सारे स्पर्मैटोगोनिया बने. और ये सब कब होता है? आफ्टर प्यूबर्टी, सेक्सुअल मैच्योरिटी नंतर होते हैं सगळं. महिलाओं में ऐसा नहीं होता. ये जो मल्टीप्लिकेशन है एंड फॉर्मेशन ऑफ ओगोनिया है, ये बिफोर बर्थ हो जाता. म्हणजे माता भगिनींमध्ये जेव्हा ओजेनेसिस असतो तो ओगोनिया जे फॉर्म होतात ते बिफोर बर्थच फॉर्म होतात. नो मोर ओगोनिया आर ॲडेड आफ्टर द बर्थ. इथं असं नाही.
द प्रोसेस स्टार्ट ओनली आफ्टर प्यूबर्टी। तो ठीक है सर, द जर्माइनल इपिथेलियल सेल undergo mitotic division, rapid mitotic division, and it increases the cell number and forms a spermatogonia. They are also diploid. फिर क्या हुआ? Now these spermatogonia increase their size. तो उदाहरण के लिए मैंने एक स्पर्मेटोगोनियम का साइज इंक्रीज किया और अब वो बन गया प्राइमरी स्पर्मैटोसाइट। म्हणजे स्पर्मैटोगोनियम फॉर्म्स प्राइमरी स्पर्मैटोसाइट ड्यू टू ग्रोथ। तो ऐसा सभी के साथ होता है। म्हणजे जे स्पर्मॅटोगोनिया तयार झाले ते सगळे प्राइमरी स्पर्मैटोसाइट बनतात, पर हमें उदाहरण के लिए एक निकालना पड़ा। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड ग्रोथ फेज। तो देखो, नाउ द स्पर्मैटोगोनिया बिकेम प्राइमरी स्पर्मैटोसाइट्स, दे आर आल्सो डिप्लॉयड। अब मल्टीप्लिकेशन फेज हो गई, ग्रोथ फेज हो गई, अब उनका होगा मैच्यूरेशन। मतलब ये जो प्राइमरी स्पर्मैटोसाइट्स बने उनका मैच्यूरेशन होगा, एंड मैच्यूरेशन इन्वॉल्व मियोसिस। और आप जानते कि जब भी किसी सेल में मियोसिस होता तो फर्ज करो कि ये कोई सेल है, और ध्यान रखो हमेशा को, जब भी किसी सेल में मियोसिस होता तो न्यूक्लियस का बंटवारा 2 बार होता, बट डीएनए रेप्लिकेशन एक ही बार होता। तो सर तुम्ही म्हणता की सेलमध्ये जेव्हा मियोसिस होते तेव्हा न्यूक्लियर डिव्हिजन 2 वेळा होणार आणि डीएनए रेप्लिकेशनचा चान्स एकच असतो। तो सर पहिले एका न्यूक्लियसचे 2 आणि मग साइटोप्लाज्मचा बंटवारा। तो जब एक न्यूक्लियस के 2 न्यूक्लियाई बने, एक साइटोप्लाज्म का बंटवारा होके 2 साइटोप्लाज्म बने, मतलब एक सेल से 2 सेल बनी, तो इस डिवीजन को कहते फर्स्ट मियोसिस, एंड इट इज अ रिडक्शन डिवीजन। Meiosis 1 forms 2 cell from single cell, and ही रिडक्शन डिवीजन है, इट रिड्यूस द क्रोमोसोम नंबर टू हाफ। मतलब कि इस सेल में अगर ट्वाइस एन है तो इनके हिस्से पे एक एक सेट आया, 23 सो 2 सेट 46, तो 1 सेट 23, अदर सेट 23। दिस इज रिडक्शन डिवीजन। आता मियोसिस संपला का नाही? मी सांगितलं की जेव्हा जेव्हा सेलमध्ये मियोसिस होतो तो न्यूक्लियसचं डिव्हिजन 2 खेप होते, 2 वेळा होते। तर आता हे 1 वेळा झालं, अजून 1 वेळा, तो एक न्यूक्लियस के 2 न्यूक्लियाई, एक न्यूक्लियस के 2 न्यूक्लियाई, और साइटोप्लाज्म का बंटवारा। तो एक सेल से 2 सेल, एक सेल से 2 सेल, तो 2 सेल से 4 सेल। तो सर इनका क्रोमोसोम नंबर हाफ है, तो इनका मतलब ट्वाइस एन टू एन हो गया, क्योंकि ये रिडक्शन डिवीजन है। अब एन का आधा होगा नहीं। सेकंड मियोसिस इज लाइक माइटोसिस, इट कीप्स क्रोमोसोम नंबर सेम। तो एन से एन, एन से एन, माने 46, 23, 23, 23, 23, 23, 23। तो दिस इज फर्स्ट मियोसिस, दिस इज सेकेंड मियोसिस। अब ध्यान दो वापस, तो germinal epithelial cell present on periphery of seminiferous tubule undergo rapid mitotic division
and forms large number of spermatogonia. Spermatogonia increase their size and became primary spermatocyte. And now primary spermatocyte undergo meiosis 1, which is reduction division. आता हा प्रायमरी स्पर्मॅटोसाइट जेव्हा जाईल मॅच्युरेशन फेजमध्ये तेव्हा काय करेल, मिओसिस 1. आणि मी सांगितलं की मिओसिस 1 झाला की एका सेलच्या 2 सेल, क्रोमोसोम नंबर हाफ. मैंने अभी कहा आपको कि अब इस एक सेल से बनने वाली है 2 सेल और जो भी इसका क्रोमोसोम नंबर है वो होने वाला है हाफ. तो सर प्राइमरी स्पर्मैटोसाइट इज diploid. After meiosis 1, which is reduction division, it forms 2 cell and chromosome number is half. म्हणजे 46 to 23. Twice n to n. तो यहां भी n is equal to 23, यहां भी n is equal to 23. और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के मियोसिस 1 माने रिडक्शन डिवीजन के बाद जब एक सेल से 2 सेल बनी तो इन सेल्स को कहते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट. एज अ रिजल्ट ऑफ मियोसिस 1 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिफरेंशिएट्स इनटू, ऐसा क्वेश्चन पूछा था. तो मियोसिस 1 होने के बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से क्या चीज बनती, सर 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनते जो हैप्लॉइड रहते. और ये पहली हैप्लॉइड स्टेज है. अब तक सारे देखो डिप्लॉइड है, 46 क्रोमोसोम वाले हैं. तो अभी क्यों हुआ हैप्लॉइड, क्योंकि मियोसिस 1 हुआ विच इज रिडक्शन डिवीजन. इट रिड्यूसेस द क्रोमोसोम नंबर टू हाफ. अब चलो थोड़ा आगे चलते. तो स्पर्मैटोगोनिया ये वाले, प्राइमरी स्पर्मैटोसाइट्स ये वाले, और अब ये बने secondary spermatocytes like this. अब हम लोग देखेंगे क्रोमोसोम कॉन्स्टिट्यूशन. म्हणजे सर हमें तो पता है कि एक सेल में अगर वो डिप्लॉइड है तो 46 क्रोमोसोम है, पर वो 46 का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे है 46. तो सर 46 में से 44 है ऑटोजोम और 2 है सेक्स क्रोमोसोम. म्हणजे 44 असतात ऑटोजोम आणि 2 असतात सेक्स क्रोमोसोम. तो आउट ऑफ 46, 44 आर ऑटोजोम and 2 आर सेक्स क्रोमोसोम. सेम हियर 44 ऑटोजोम and 2 आर सेक्स क्रोमोसोम. सेम हियर प्रायमरी स्पर्मॅटोसाइट मध्ये सुद्धा असतात 46 क्रोमोसोम. म्हणजे 44 ऑटोसोम आणि 2 सेक्स क्रोमोसोम. पण सर आता तर प्रायमरी स्पर्मॅटोसाइट मध्ये झाली रिडक्शन डिवीजन, क्रोमोसोम नंबर हाफ होणार है. तो 46 का, तो इसमें 46 है, तो इसके हिस्से पे 23, इसके हिस्से पे 23, बंटवारा हो गया. तो सर ये 46 कैसे थे, 44A प्लस XY. म्हणजे हे जे 46 क्रोमोसोम होते प्रायमरी स्पर्मॅटोसाइटमध्ये ते 44 ऑटोजोम आणि XY सेक्स क्रोमोसोम. तो यांचा बंटवारा करा. तो सर 22 XY. तो ये कौन से 23 है, 22A प्लस X, और ये कौन से 23 है, 22A प्लस Y. एक के हिस्से पे Y आया, एक के हिस्से पे X आया है. अब द सेकेंडरी स्पर्मैटोसाइट बच्चा हुआ करेंगे सेकंड मियोसिस. आणि तुम्हाला मी सांगितलं की सेकंड मियोसिस असतो मायटोसिस सारखा. एका सेलच्या 2 सेल, क्रोमोसोम नंबर सेम. एका सेलच्या 2 सेल, क्रोमोसोम नंबर सेम. तो देखो एक सेल से 2 सेल, क्रोमोसोम नंबर सेम. एक सेल से 2 सेल, क्रोमोसोम नंबर
सेम। तो सर सेकंडरी स्पर्मॅटोसाइट आफ्टर सेकंड मियोसिस म्हणजे सेकंड मॅच्युरेशन डिव्हिजन प्रोड्यूसेस 2 cells called spermatid, क्रोमोजोम नंबर n। कैसे n? क्योंकि सेकंड मियोसिस इज लाइक माइटोसिस। म्हणजे सर n चा nच राहतो हो। तो बताओ यहां सेकंडरी स्पर्मैटोसाइट में कितने क्रोमोजोम थे? सर 23। कौन से 23? 22A+X। तो अब इससे तो 2 सेल बनी, तो इसके हिस्से पे भी आएंगे 23, इसके हिस्से पे भी आएंगे 23, माने 22A+X 22A+X। तो 22 कॉमन निकाल दो, 22 X X। तो इसके पास भी X है, इसके पास भी X है, इसके पास Y है, इसके पास भी Y है। तो आता प्राइमॉर्डियल जर्म सेल किंवा जर्माइनल इपिथेलियल सेल आफ्टर मल्टिप्लिकेशन फेज विच इन्वॉल्व माइटोसिस प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ सेल कॉल्ड स्पर्मैटोगोनिया। दे आर डिप्लॉयड। ईच स्पर्मैटोगोनियम undergo growth phase and became primary spermatocytes. They are also diploid. Each primary spermatocyte undergo meiosis 1, that is reduction division, and forms 2 secondary spermatocytes which are haploid. Each secondary spermatocyte undergoes second maturation division and forms 2 spermatid. So each secondary spermatocyte forms 2 spermatid. So 2 secondary spermatocyte will form 4 spermatid. All are haploid but not same. सगड़े हैप्लॉइड है, 23 क्रोमोजोम इन ईच, पर वो सरी के नहीं है। 2 है X वाले, 2 है Y वाले। तो अब हो गया मैच्यूरेशन फेज और रिजल्टेंट सेल्स आर कॉल्ड स्पर्मैटिड। पण सर जर्मिनल इपिथेलियल सेल पासून स्पर्मॅटोगोनिया, स्पर्मॅटोगोनिया पासून प्रायमरी स्पर्मॅटोसाइट, प्रायमरी स्पर्मॅटोसाइट पासून सेकंडरी स्पर्मॅटोसाइट, सेकंडरी स्पर्मॅटोसाइट पासून स्पर्मैटिड। तो जर्माइनल इपिथेलियल सेल से स्पर्मैटोगोनिया, स्पर्मैटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मैटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मैटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मैटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मैटोसाइट से बन गए स्पर्मैटिड विच आर नॉन फंक्शनल, नॉन मोटाईल। म्हणजे जे स्पर्मॅटिड तयार झाले ते काही कामाचे नाही, नॉन फंक्शनल, नॉन मोटाईल। और स्पर्म तो होने चाहिए मोटाइल, और स्पर्मैटिड तो है नॉन मोटाइल। तो कुछ तो स्वरूप बदलना होगा, अपने आप में बदलाव लाने पड़ेंगे। तो काफ़ी सारे चेंजेस होते। जो स्पर्मैटिड है उसके माइटोकॉन्ड्रिया नीचे आएंगे, मतलब लेंथ इंक्रीज होगी उस सेल की, सेंट्रियोल्स बीच में आ जाएंगे, जो गोल्जी बॉडी है वो एक्रोसोम बन जाएगा, डिस्टल सेंट्रियोल जो है वो एक्साइल फिलामेंट बनाएगा। ऐसे बहुत सारे उसमें बदलाव आएंगे। म्हणजे आत्ता होणार स्पर्मॅटिड मध्ये मेटामॉर्फोसिस कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस, and each spermatid produces a spermatozoa. So 4 spermatid produces 4 spermatozoa. और ये 4 जो स्पर्म्स बने हैं उसमें से 2 है X वाले कॉल्ड गाइनोस्पर्म, क्योंकि अगर X वाले स्पर्म ने ओहम को फर्टिलाइज किया तो ओहम में हमेशा रहता 22A+X, माने फीमेल गमिट, ओहा, एग ऑलवेज कंटेन
22 ऑटोसोम and 1 X chromosome, total 23 chromosome. But this is not true for the sperm. Human males are heterogametic. They produces 2 type of sperms. So 50% X containing and 50% Y containing besides ऑटोझोम. म्हणजे अर्धे एक्स वाले अर्धे वाय वाले. नुसतं काही एक्स अँड वाय थोडी असतो, ऑटोझोमही असतात ना. सो 22 ए प्लस एक्स टोटल 23, 22 ए प्लस वाई टोटल 23. और अगर एक्स वाले ने किया फर्टिलाइजेशन तो 22 प्लस 22 44, एक्स प्लस एक्स 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 एंड 44 प्लस एक्स एक्स, डॉटर विल बी बॉर्न. और यदि y वाले ने किया फर्टिलाइजेशन तो 22 प्लस 22 44, x प्लस वाई एक्स वाई, दैट इज सन विल बी बॉर्न. मतलब ओहम हैज नो रोल इन सेक्स डिटर्मिनेशन. इन बोथ द केसेस द ओहम रिमेन सेम, सन और डॉटर. सो व्हाट चेंजेस? इट इज द टाइप ऑफ द स्पर्म. तो एक बार ये नीट क्वेश्चन है. सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग इज डिटरमाइंड बाय, बाळाचं लिंग, मुलगा की मुलगी, कोण ठरवतं? इट इज द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द स्पर्म फर्टिलाइजिंग द ओहम. ये उसका उत्तर है. तो इसीलिए ये जो एक्स वाले हैं वो गाइनोस्पर्म है, उन्होंने फर्टिलाइजेशन किया तो डॉटर विल बी बॉर्न. और ये जो दो है वाई वाले, दे आर एंड्रोस्पर्म्स, उन्होंने फर्टिलाइजेशन अगर किया तो लड़का होगा. तो सर आपने 50-50 बोला. हाँ, सो 4 में से 2 एक्स वाले, 4 में से 2 वाई वाले. तो ये है स्पर्मेटोजेनेसिस. अब यहां देखो, ये जो स्पर्मेटिड्स है उनसे बने स्पर्मेटोजुआ which are attached to Sertoli cell with their head embedded in the Sertoli cell and they are attached in bundles. और जब वो रिलीज होंगे तो that is called spermiation. कन्फ्युजन नाही व्हायचं, करायचं नाही. Spermatid to spermatozoa is spermiogenesis and release of spermatozoa from seminiferous tubule is spermiation. अब कुछ न्यूमेरिकल्स की बात करें, कैलकुलेशंस की बात करें. पहले मैं आपको बेसिक बता देता. The basic is 1 spermatogonium produce 4 sperm. 1 primary spermatocyte produces 4 sperms. 1 secondary spermatocyte produces 2 sperm. 1 spermatid produces 1 sperm. 1 meiosis, complete meiosis, 1 and 2. So 1 meiosis produces 4 sperm. म्हणजे सर एका स्पर्मॅटोगोनियम पासून 4 स्पर्म, किंवा एका प्रायमरी स्पर्मॅटोसाइट पासूनही 4 स्पर्म, एका सेकंडरी स्पर्मॅटोसाइट पासून 2 स्पर्म, एका स्पर्मॅटिड पासून 1 स्पर्म, एका मियोसिसमुळे 4 स्पर्म, हे तुम्हाला दिसतंय. अब 1-2 प्रॉब्लम हम लोग ट्राई करेंगे कि फॉर एग्जाम्पल, फॉर गेटिंग 100 स्पर्मेटोजुआ एंड, तो पहले तो हम लोग स्पर्म की बात करेंगे क्योंकि हमने oogenesis नहीं देखा. सो फॉर गेटिंग 100 स्पर्मेटोजुआ और स्पर्म्स, हाउ मेनी meiosis, spermatids and spermatogonia
रिक्वायर्ड। तो डरो नहीं, आराम से सोचो कि 100 स्पर्म के लिए कितने मियोसिस? तो सर एक मियोसिस 4 स्पर्म, एक मियोसिस 4 स्पर्म। तो फॉर 100 स्पर्म x मियोसिस, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सो 4x इज इक्वल टू 100। तो x इज इक्वल टू 100/4, दैट इज 25 मियोसिस। आगे तो ये हो गए 25। हाउ मेनी स्पर्मेटिड्स आर रिक्वायर्ड फॉर 100 स्पर्म? तो सर 1 स्पर्मेटिड 1 स्पर्म। तो फॉर 100 स्पर्म 100 स्पर्मेटिड। नाउ फॉर 100 स्पर्म हाउ मेनी स्पर्मेटोगोनिया रिक्वायर्ड? तो सर एक स्पर्मेटोगोनियम 4 स्पर्म। तो 100 स्पर्म के लिए 25 स्पर्मेटोगोनियम। So 1 spermatogonium 4 sperm. So for 100 sperm x spermatogonia. So वापस 4x is 100. So x is 25. तो अपलॉइडी लेवल, जर्माइनल सेल डिप्लॉइड, स्पर्मेटोगोनिया डिप्लॉइड, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिप्लॉइड, but secondary spermatocyte, spermatid and spermatozoa are haploid। ये भी एक क्वेश्चन है नीट का। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखो, 2010 से 2020 तक देखने चाहिए और सारे क्वेश्चन आने चाहिए। हाँ, 2010 के पहले कुछ अलग सिलेबस था तो उसमें से कुछ डिफिकल्टी हो सकती, बट रिसेंटली नहीं। What is the chromosome constitution of sperm? सांगा बरं। तो सर पुरुष के स्पर्म का क्रोमोजोम कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? तो सर 23 क्रोमोजोम है, 22 ऑटोजोम और एक्स क्रोमोजोम या वाई क्रोमोजोम। 2 टाइप ऑफ स्पर्म्स रहते, एंड्रोस्पर्म एंड गाइनोस्पर्म। व्हाट इज द क्रोमोजोम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ओहम? सर ऑलवेज 22A + X। तो दिस इज ऑल अबाउट स्पर्मेटोजेनेसिस इन डिटेल। और अब हमें देखना है स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्पर्म। फर्स्ट पॉइंट, तो ये जो स्पर्म या स्पर्मेटोजुआ है म्हणजे मेल गमीट, तो हमें आपको सबको जन्म देने के लिए हमारी माताओं का जो योगदान है वो एक माइक्रोस्कोपिक सेल का है कॉल्ड ओहम, और हमारे पिता का योगदान है वापस एक माइक्रोस्कोपिक सेल का कॉल्ड स्पर्म। और उस स्पर्म माने मेल गमीट का हमें देखना है माइक्रोस्कोपिक डिटेल्स, उसका डिटेल्ड स्ट्रक्चर। सुनो, पहले तो बताओ व्हाट इज स्पर्म। तो सर वेरी सिंपली स्पर्म इज अ मेल गैमिट। अब वो स्पर्म को एक लाइन में डिस्क्राइब करो, म्हणजे तो स्पर्म एका लाइन मध्ये सांगायचा। हां, तो सुनो, ह्यूमन स्पर्म इज यूनिसेल्युलर, माने सर वो एक सेल है। यूनिन्यूक्लिएट माने उसमें एक न्यूक्लियस है। सो यूनिसेल्युलर, यूनिन्यूक्लिएट। हैप्लॉइड मतलब सर वो N है, 23 क्रोमोजोम है उसमें, 22 ऑटोजोम और X क्रोमोजोम या फिर
22 ऑटोसोम और वाई क्रोमोसोम, तो इट इज हैप्लॉइड। मोटाइल, तो उसको फ्लैजेला है। विद द हेल्प ऑफ लैशिंग मोमेंट ऑफ द फ्लैजेला इट कैन स्विम इन अ लिक्विड मीडियम। तो वजाइना टू सर्विक्स, सर्विक्स टू यूट्राइन कैविटी टू फैलोपियन ट्यूब, वो स्विमिंग करता है by the movement of its tail, which is its locomotory part, at the rate of 1 to 3 millimeter per minute। 1 से 3 मिलीमीटर पर मिनट से वो दौड़ता है और उसे ओहम तक पहुंचने में करीब 2 से 3 घंटे लग जाते। तो यूनिसेलुलर, यूनिन्यूक्लिएट, हैप्लॉइड, मोटाइल, माइक्रोस्कोपिक माने आंखों से नहीं दिखता, माइक्रोस्कोपिक है। तो यूनिसेलुलर, यूनिन्यूक्लिएट, हैप्लॉइड, मोटाइल, माइक्रोस्कोपिक है। और इसका साइज जो है वो है 60 माइक्रोन। तो दिस इज द डिस्क्रिप्शन। Human sperm or male gamete is unicellular, uninucleate, haploid, motile, microscopic cell. The size is 60 micrometer. उसके जो पार्ट है, हेड, नेक, मिडिल पीस एंड टेल। सो हेड करीब करीब 4 माइक्रोमीटर, मिडल पीस 6 माइक्रोमीटर और टेल 50 माइक्रोमीटर, तो टोटल 60 माइक्रोमीटर का है। और जो ओहम रहता फीमेल गमीट वो ऑलमोस्ट डबल है, ऑलमोस्ट डबल ऑफ द स्पर्म। तो यूनिसेलुलर, यूनिन्यूक्लिएट, हैप्लॉइड, मोटाइल, माइक्रोस्कोपिक सेल इज मेल गमीट। It is 60 micrometer in length. तीसरा पॉइंट, ह्यूमन sperms can survive in female genital tract for 72 hours, that is 3 days. However, they could fertilize the ovum in first 24 hours। मतलब जो पुरुष के स्पर्म्स है वो स्त्री के जेनाइटल ट्रैक्ट में जीवित तो 3 दिन रह सकते, पर वो फर्टिलाइज करने की जो क्षमता रखते वो पहले 24 घंटे में, बाद में नहीं। नेक्स्ट, द ह्यूमन स्पर्म has 4 parts: head, neck, middle piece and tail। टेल के भी 2 पार्ट हो सकते, मेन पीस, एंड पीस। तो अब हम लोग 4 पार्ट को डिस्क्राइब करेंगे। एक बार वापस देखो, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्पर्म और मेल गमीट। फर्स्ट पॉइंट, male gamete or sperm is unicellular, uninucleate, haploid, motile, microscopic cell. The size is 60 micrometer. It survives for 3 days, but its fertilizability is first 24 hours. It has 4 parts: head, neck, middle piece, tail, and the entire sperm is covered with plasma membrane. वो तो कोई भी एनिमल सेल के ऊपर रहती। तो अब देखो, नाउ दिस इज हेड, दिस इज नेक, दिस इज मिडल पीस एंड दिस इज टेल। So head is circular or oval. It contains large nucleus with 23 chromosomes.
म्हणजे स्पर्मचं जे न्यूक्लियस असतं ते त्याच्या हेडमध्ये असतं. सो जेनेटिक पार्ट ऑफ द स्पर्म इज ओनली इन हेड. बाकी कहीं जेनेटिक पार्ट नहीं है. पर सर मिडल पीस में तो माइटोकॉन्ड्रिया रहते, उसमें तो डीएनए रहता, जीन्स रहते, पर हमें माइटोकॉन्ड्रियल जीन्स हमारी माता से मिले, पिता से नहीं. हमें पूरा साइटोप्लाज्म हमारी माता से मिला, पिता से नहीं. दैट इज मैटरनल इनहेरिटेंस, वो अलग चीज है. तो हा न्यूक्लियस आहे, याच्यात किती क्रोमोझोम आहे? 23. 22 प्लस एक्स नहीं तो 22 प्लस वाई. अब इसके ऊपर एक कैप रहती है, थैला, और इसे कहा गया है एक्रोसोम. तो दिस इज न्यूक्लियस, दिस इज एक्रोसोम, एंड एक्रोसोम of the sperm is derived from Golgi body of the spermatid. ये एक प्रकार का लाइसोसोम है एंड इट कंटेन सेव्हरल एन्झाइम्स. म्हणजे सर या ॲक्रोझोम एक बॅग आहे, या बॅगमध्ये खूप सारे लायटिक एन्झाइम्स आहेत. द मेन इज हाय ॲल्युरोनिडेज, हाई एल्यूरोनिडेज एंजाइम. ये सारे एंजाइम्स जो है, बहुत सारे हैं, उसमें से एक का नाम हमने लिया. तो ये सारे एंजाइम जो है उन्हें एकत्रित कहते हैं स्पर्म लाइसिन. और उनका काम क्या है? तो जब फर्टिलाइजेशन होगा तो दे हेल्प टू रप्चर एग एनवल्ला. तो now this is ovum, haploid, n is equal to 23. अब ये है स्पर्म और स्पर्मेटोजुआ, n is equal to 23. तो इसे अगर करना है फर्टिलाइजेशन तो कोरोना रेडिएटा, जोना पेलुसिडा एंड वाइटेलाइन मेम्ब्रेन, इनको चीरना होगा. तो उसके लिए है स्पर्म लाइसिन. वन ऑफ द स्पर्म लाइसिन इज हाय एल्यूरोनाइडेज. तो ठीक आहे सर, हेडमध्ये काय काय आहे? ॲक्रोझोम आणि न्यूक्लियस आहे. सुनो, अब ये जो नेक है उसमें प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल एंड डिस्टल सेंट्रियोल, यू नो सेंट्रियोल हेल्प्स इन अ सेल डिवीजन. तो ये जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है वो ओहम को डोनेट किया जाएगा स्पर्म द्वारा. क्यों? क्योंकि ओहम के पास खुद का सेंट्रियोल नहीं होता. रिमेंबर, द स्ट्रक्चर दैट इज लैकिंग इन द ह्यूमन ओहम इज सेंट्रियोल. सो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल स्पर्म विल डोनेट टू द ओहम. म्हणजे स्पर्ममध्ये 2 सेंट्रियोल आहे, तर एक तो ओहमला देणार. और ये जो डिस्टल सेंट्रियोल है, दिस इज अ बेसल बॉडी ऑफ एक्साइल फिलामेंट और एक्झोनेमा म्हणजे फ्लॅजेला. तो हा जो फ्लॅजेला आहे त्याची ती बेसल बॉडी आहे डिस्टल सेंट्रियोल. तो हेड न्यूक्लियस एक्रोसोम, नेक प्रॉक्सिमल डिस्टल सेंट्रियोल. अब ये जो मिडल पीस है यहां तक, उसमें लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल्स आर प्रेजेंट कॉल्ड नेम्ब्रेन कर्न. तो ऐसे इसमें माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल्स है. म्हणजे लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर प्रेजेंट इन मिडल पीस.
Large number of mitochondria are present in middle piece, but they are arranged in spiral. In spirals को नेम बेन कर्न कहा गया, और ऐसे 10 to 14 स्पाइरल्स रहते, तो इतने सारे माइटोकॉन्ड्रिया इन मिडल पीस। और आप जानते कि माइटोकॉन्ड्रिया इज अ पावर हाउस ऑफ दिस सेल। जितना उसमें होगा ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक ग्लूकोज, उतनी निकलेगी एनर्जी, एंड दैट एनर्जी इज प्रोवाइडेड फॉर द स्पर्म लोकोमोशन। तो इसको इंजन कह सकते हैं आप स्पर्म का। तो हेड, इट कंटेन एक्रोसोम एंड न्यूक्लियस, नेक, proximal, distal centriole, middle piece, large number of mitochondria। ये जो एक्साइल फिलामेंट एक्सोनेमा या फ्लैजेला नाम का धागा है, तो आप सेंट्रियोल याद करो, फ्लैजेला याद करो। अगर आप इस धागे को कट करके देखोगे तो आपको 9+2 अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल दिखेगी। म्हणजे हा जो धागा है इसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स है, हाँ, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन के बने, वो कितने हैं? 11। तो ये 9 डबलेट्स और 2 सिंगलेट्स, ऐसा उसका सेक्शन है। 9+2 अरेंजमेंट होगी उसमें। अब यहां से जो आगे पार्ट है, दिस इज कॉल्ड टेल। इट इज अ लोकोमोटरी पार्ट। इट हेल्प्स इन स्विमिंग द स्पर्म इन द लिक्विड मीडियम। तो हेड, नेक, मिडल पीस और यहां से टेल। तो एंटीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन स्पर्म इज हेड। द हेड इज सर्कुलर और ओवल इन शेप. It is 4 micrometer in length. It contains nucleus and acrosome. Acrosome contains sperm lysine, for example, hyaluronidase, which help in penetration of the rupturing of the egg envelope. The short, narrow, indistinct part is neck. It contains proximal and distal centriole. Distal centriole is a basal body of flagella or exonema. Middle piece is middle elongated cylindrical part of the sperm. It contains axile filament and large number of mitochondrial spirals which provide energy for locomotion. And the posterior most longest part, 50 micrometer, is tail. It is locomotory part, and due to lashing moment of the tail, the sperm can move. The entire body of sperm is covered with plasma membrane except the end piece. ये मेन पीस है, यहां तक ये एंड पीस है. तो जिथपर्यंत प्लाझ्मा मेम्ब्रेन आहे तो मेन पीस, आणि जिथे प्लाझ्मा मेम्ब्रेन नाही तो एंड पीस. अब सुनो, न्यूक्लियस एंड एक्रोसोम आर कवर्ड विथ अ शीट, म्हणजे कव्हर. न्यूक्लियस एंटीरियर, अर्धावरचा, ऊपरी आधा न्यूक्लियस एंड एक्रोसोम एक शीट में है, उसे कहा है गैलिया. बच्चा आधा न्यूक्लियस, मतलब यहां से नीचे, बच्चा आधा न्यूक्लियस, नेक एंड मिडल पीस are covered with another cover called meninchate. तो ये बहुत डिटेल में हमने स्पर्म देखा. तो सर इसकी हमें क्या उपयोगिता है? तो बोर्ड वाले जो स्टूडेंट है आपको डायग्राम पूछते हैं, ड्रॉ एंड लेबल डिटेल्स ऑफ ह्यूमन स्पर्म या डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्पर्म. तो हेड, उसमें क्या है, नेक, उसमें क्या है, मिडल पीस, उसमें क्या है, ते वो क्या करता. तो एक तर डिस्क्रिप्शन विचारतील, नाही तर डायग्राम विचारतील. तो यहाँ मेल डिपार्टमेंट कंप्लीट हुआ. ये हमारा चौथा लेक्चर है, वीडियो लेक्चर. तो हमने
इस लेक्चर में स्पर्मेटोजेनेसिस एंड स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म देखा। अब अगले लेक्चर में मैं बात करूंगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।